What do you think? Like, would you ever consider marriage again? I don't know यार. You know, there's some things that are flexible in life, but मेरी value system बहुत solid है. तो लोगों ने बोला unfollowing you, I said please unfollow. Be my guest. आप unfollow करने से पहले मैं आपको block कर देती हूँ. I don't care. I don't like anti-nationals. I don't. I love my country. और जब मुझे पूछता है आपका religion क्या है, मैं बोलती हूँ भारतीय हूँ. एक टाइम पे आपने सेट पे कितने ज्यादा घंटे दिए होंगे ईशा, जो अब तो मैं यहाँ पे सोई नहीं हूँ. हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मैं. This is during when? During Ek Viva Aisa Bhi and Right or Wrong. I was shooting two films at the same time. Before I did those hot numbers, the sexy songs, I had played the girl next door in my South films and won awards for that too. Right. Because not everybody has that typecast mentality. There are certain producers, directors who have full confidence how they can mold the actor. You know, वो एक गाना और आशिकी में तेरी also. आशिकी में तेरी. Oh my God, even that I think ये सारे कुछ गाने हैं जो गाने नहीं, मेरी किस्मत गानों में बहुत अच्छी है. Could OTT be of great interest right now? It is. If I am offered with something that challenges me and that entices my ribs, of course I'll do it. 20s में looks very important. The 30s में पैसा very important. तो मैं ये मेरे experiences सिखाती हूँ धीरे धीरे रियाना को, but then she has her own purpose. Hi, this is Isha Kopikar and you're watching me on Filmy Beat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बीट. मैं हूं हेशा चीमा और जिनसे मैं आज बात करने जा रही हूँ, काइंड ऑफ वेरी एक्साइटेड. उनको मैं देख पहली बार लग रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक आई हैव नोन हर सिंस फॉरएवर बिकॉज हर वाइब्स आर पॉजिटिव, शी इज लुकिंग स्टनिंग एंड वेल वी हैव अ ईशा हेशा कॉमनैलिटी इन द मिडल. ईशा कोपिकर इन द हाउस. हाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. It's a very unusual name, Hesha. हाँ. What does it mean? So actually Hesha is a Sanskrit word which means complete. But quite ironically, my dad named me Hesha because वो हमेशा से चाहते थे कि वो मेरा नाम ईशा ही हो. But क्या हो गया कि you know हम पंजाबीज हैं तो हमारे में ना अक्षर निकालते हैं. तो जब मम्मा was adamant कि अक्षर निकालना है तो ह आ गया था. So the lazy man just made it ईशा पे ह लगा दिया आपने और हेशा बना दिया उन्होंने. And then बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि actually एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम मतलब जिसका मीनिंग कंप्लीट है. हाँ, which was I think after my 10th grade. बाप रे. और तब तक मैं बहुत चीटिंग करके सबको ईशा ही बोलती थी कि like hi I'm ईशा because it's easier to remember क्योंकि हेशा के इतने versions निकल आए थे कि I was like I don't like my name only but I think at the age of 35 I like it. Okay. Now I feel like okay ठीक है, अलग है, कुछ तो अलग है. But nice, that's very unique. Thank you. Isha, 2 decades in this industry and I think आपको देख के मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि आप 2 decades से इस इंडस्ट्री में हो. और second of all, I feel जो इंटरनेट पे भी जब आप कुछ भी डालते हैं जितना वायरलिटी उसे मिलता है I have to say कि you know actors अक्सर stress out हो जाते हैं कि वो relevant कैसे रहेंगे इतने टाइम तक. And I think Isha Kopikar is synonymous to relevance. Yes. And that's the compliment I want to pay you. Thank you so much. You know. Thank you. How do you feel about this one? और दूसरा, क्या आपको इस बात की खुद से रियलाइजेशन है कि जब हम जैसे लोग आके आपको बताते हैं तो आपको पता All लगता the time बोलते हैं. See, it is मतलब मैंने कोई कॉन्शियसली इस पे वर्क नहीं किया. मैंने बस अपने as far as my personality goes, of course fitness पे that's the exterior. लेकिन internally I think बहुत ज़रूरी है adaptability. I think that is what makes you relevant. क्योंकि ऑडियंस इवॉल्व होती रहती है, मीडियम्स चेंज होते रहते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहते हैं एंड एवरीथिंग चेंजेस. तो आपको अगर रेलेवेंट रहना है विद एवरी एज ग्रुप एंड द चेंजिंग टाइम्स, यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ, यू हैव टू अडैप्ट एंड यू शुड बी विलिंग टू यू नो लर्न. राइट. तो तभी हो सकता है ये. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. मतलब खाना पीना, वर्कआउट, वो तो हर कोई करता है. And then you need to have a child's heart. Right. I think that's most important. True. You have to have fun. You have to be honest. You have to be natural. That actually exudes. पर अगर आप पूछूं आपसे कि जब ईशा ने अपना करियर शुरुआत किया था और अब इतने सालों बाद, क्या आपके नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स चेंज हुए ओवर द इयर्स? Yes, of course. I realize that it is very important to have boundaries. क्योंकि अगर you don't set your boundaries, somebody else will come and set them for you. हाँ.
ज़रूरी नहीं है हर किसी को प्लीज़ करना, ज़रूरी नहीं है हर बार यस बोलना. आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट लाइज इन सेइंग नो मोर देन सेइंग यस. तो ये मैंने सीखा काफ़ी अर्ली मेरे करियर में यस 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 यस. सबसे हार्डेस्ट नो आपने क्या बोला ईशा? टर्निंग डाउन फिल्म्स, क्योंकि it has to be synonymous with your scheme of things, your values, your principles. देखिए सबसे important बात मेरे लिए मेरे values और principles है. हर किसी के लिए you know it's what rocks your boat. Right. For me it's my values and my principles that keeps me going. I think that is अभी recently मैंने किसी पोस्ट में डाला है कि वो मेरी inheritance है, वो मेरी legacy है. That is I'm passing on to Rihanna, my daughter. पैसा कोई भी बनाता है, but आपके जो वैल्यू सिस्टम है वो सॉलिड होनी चाहिए. एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट. या फॉर श्योर. सो वो मिलना अपने माँ बाप से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और उसको बनाए रखना, उसको प्रैक्टिस करना, और उसको आगे जाके अपने बच्चों को यू नो दे इनकलकेट इट फ्रॉम यू, देना. ये it's not easy because children don't learn by looking at, मतलब आपके बोलने से वो सीखते नहीं हैं. आप क्या करते हो, आप क्या खुद प्रैक्टिस करते हो, उससे सीखते हैं. True, for sure. मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, you know. Don't bite your nails, बोल के if I'm biting my nails, Rihanna will start biting her nails. It's as simple as that. Yeah. True, that's true. But you know, when you start off your career in an industry जहाँ पे इतना ज़्यादा competition है, vanity को लेके competition है, roles को लेके competition है. कौन सी vanity, van या vanity? दोनों को लेके. I love it. I think काफी लोगों ने बहुत openly discuss किया है through the years that ये सारे issues रहे हैं कि actor को better vanity मिलती थी, actresses को नहीं मिलती थी, all of that. क्या वो trivial लगता है? I think हमारे era के जो लोग हैं ना, मतलब I started my movies in like 2002. Yeah. खलास was in 2002. तो उस era के जो लोग हैं, it's almost like now 25, 26 years. हाँ. But I look the same. I look like I'm 25, 26. I can give these 25, 26-year-old a run for them. A total toss for the way they look, for the way they feel, and the way they exude the energy also. Yes. I have to agree. So then मैं ये कहना चाहूँगी कि उस टाइम के हम लोग, like I said, I think we're more adaptable. हमको हमारा फोकस काम पे था, ये सब फालतू चीज़ों पे नहीं था. तो इसीलिए वो आज तक रनिंग में है. You know, मुझे ये बोलना है कैमरा पे सबको, ईशा ने आज अपना पूरा आउटफिट, whether it's स्टाइलिंग, हेयर और मेकअप, everything she's done her own. Yes. And मैंने बहुत सारे एक्ट्रेसेस को 15 साल में इंटरव्यू किया जो बहुत ऑनट्राज लेके आते हैं और वो ऐसे दिखते हैं. So when you're telling me कि फसाड इतना ज्यादा आपके लिए शायद नहीं मैटर किया है, I think it's true, you know, because अगर आप ऐसे आ सकते हैं with and so that much is what humility, I think matters, that's you know, crazy. honesty, being organic. Yeah. I think that is what is long lasting than anything else, क्योंकि लोगों को वो दिखता है. But it's not, it's very, I mean it's not at all easy to fool people now. ऐसे पकड़ते लोग. बट यू नो फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब एक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव होती है और आपको पता है जब आप उस इंडस्ट्री में स्टेप रख रहे हो, राइट, देन हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ कीप योर सैनिटी इन चेक, यू नो, ताकि आप भटक ना जाओ, आप इन सारी चीज़ों पे फोकस ना डालो, बिकॉज समटाइम्स व्हाट सेल्स इज व्हाट इज सीन ऑन स्क्रीन, राइट? It's a practice, Hisha. It's like you have to, how you practice meditation. You practice to be happy. You practice not to get affected. कोई भी चीज़ इतनी सीरियसली मत लो. अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया, कौन सा वाला पोस्ट था वो, जो अभी प्रोटेस्ट लेके जो चल रहा है, और मैंने मेरा स्टैंड बताया कि प्रोटेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया है उसमें है. करेक्ट. मुद्दे की बात करो, किसी को गाली देके, खास करके हमारे नेताओं को गाली देके, लुक एट देयर एज, लुक एट द वर्क दे हैव डन. आप देखिए हमारे कंट्री की कितनी प्रोग्रेस हुई है पिछले कई सालों में. वो फिर आप डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो. डिक्टेटरशिप क्या आपको पता है? लुक अराउंड इन द नेबरिंग कंट्रीज. करेक्ट. आपको समझ में आएगा कि डिक्टेटरशिप क्या है. तो इन बातों को लेके काफी चर्चा हुई, मुझे बहुत फ्लैक मिला, ट्रोल भी हुई मैं. आई केयर अ डैम, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मतलब क्या? मेरी बिलीफ सिस्टम सॉलिड है हमेशा. आप वो ऑल्टर नहीं कर सकते. A lot of it is, I won't even say it's flexible. Right. You know, there's some things that are flexible in life, but मेरी value system बहुत solid है. तो लोगों ने बोला unfollowing you, I said please unfollow. Be my guest. आप unfollow करने से पहले मैं आपको block कर देती हूँ. I don't care. I don't like anti-nationals. I don't. I love my country. और जब मुझे पूछता है आपका religion क्या है, मैं बोलती हूँ भारतीय हूँ.
So I'm very patriotic at heart. Wow. My grandfather, during the Indo-China war, he was a doctor there. So it runs in my family. My father is very patriotic. So मैंने देखो मैं भटक के कहाँ चली गई, क्वेश्चन क्या था? No, but you know, I think आपने बहुत सही पॉइंट निकाला, because not just that, ईशा, आप एक पब्लिक फिगर और एक एक्टर होने के साथ साथ you're somebody who's also a mother, you know, तो I think ये जो कॉज और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, even as a mother at a human level आपके लिए बहुत क्लोज होगा, because बात eventually एजुकेशन सिस्टम और बच्चों की है, बट कैसे प्रोटेस्ट किया जाए? बहुत मेरे फैंस ने मुझे पूछा, लोगों ने मुझे पूछा कि आप अपने घर में एसी में बैठ के आप बोल रहे हो कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आपकी बच्ची को कल आप फॉरेन भेज दोगे, यू नो, यू भेज दोगे, यहाँ पे थोड़ी ना वो स्टडी करें। आप लोगों को कैसे पता? ये एसी लग्जरी रूम में बैठने के लिए मैंने कितना काम किया है, मैंने क्या किया है, मेरी लाइफ की कहानी आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि मैंने अपनी बेटी को फॉरेन भेजने वाली हूँ, कि मुझे मेरे इंडियन एजुकेशन पे भरोसा है? करेक्ट। हु आर यू टू कमेंट ऑन दैट? यू नो व्हाट आई मीन? मैं अपनी बेटी को मेरी लाइफ लेसन्स देती हूँ, जो मेरे स्ट्रगल्स हैं, जो मेरी वैल्यू सिस्टम है, वो पास ऑन कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। नथिंग इज इजी। उसको बताती हूँ मैं, लाइफ इज नॉट फेयर, एंड हूएवर सेड लाइफ इज फेयर, एंड व्हाई शुड इट बी फेयर? क्या सब आपके रिश्ते नाते हैं क्या? आपके माँ बाप है क्या? नहीं है, माँ बाप सिर्फ एक है। उन पे भरोसा करो, उन पे डिपेंडेबल रहो, उन पे डिपेंड रहो, नॉट ऑन एवरीवन एल्स। ट्रू। So I always tell parents, don't cushion their lives so much, क्योंकि जी आज की Gen Z है, they're very overprotected according to me. Yeah. I think you also fall into that, or maybe No, no, I'm a millennial. You're Yeah. a millennial, yeah. Because the millennials and the Gen X saw struggles, करेक्ट। and because of that, उसकी वजह से उन्होंने जो उनको नहीं मिला वो अपने बच्चों को पास ऑन किया। कि हम लोग ट्रेन ऑटो बस में जाते थे, मैं चलो मेरी बेटी गाड़ी में जाएगी, बस में क्यों जाए, इसमें क्यों जाए? क्या उस टाइम क्राइम नहीं था? उस टाइम था, हमारे माँ बाप भी सोच सकते थे, लेकिन हम गए ना, बड़े हुए ना, लेकिन हम उस चीज़ को क्वेश्चन करके उनको तो, लेकिन ओवर प्रोटेक्ट करने में ना उनकी रेजिलियंस, उनकी थ्रेशोल्ड लेवल्स, उनका पेशेंस सब खत्म होता जा रहा है। करेक्ट। क्योंकि उनमें जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स थे जो हम में थे, उनमें है ही नहीं, होने चाहिए, वो है ही नहीं। इसलिए आई थिंक लोग ज्यादा आजकल, यू नो, आई थिंक रिजेक्शन, फेलियर, कुछ नहीं, दे कैन नॉट हैंडल इट, दे कांट हैंडल इट। दैट्स ट्रू। आई थिंक मेरे खुद के टीम में इतने सारे 22 ईयर ओल्ड्स आर देयर जो सडनली स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते और छोड़ के स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। They just say that we don't want to work. We want our इतना टाइम हम लोग काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं क्योंकि घर पे माँ बाप खिलाने पिलाने के लिए हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम पे आपने सेट पे कितने ज्यादा घंटे दिए होंगे ईशा, जो अब तो यहाँ पे सोई नहीं हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मैं। This is during when? During एक विवाह ऐसा भी and Right or Wrong. I was shooting 2 films at the same time. So I was doing a 9 o'clock to 5 p.m. shift, 9 a.m. to 5 p.m. and then a 7 p.m. to 5 a.m. My God. For 5 consecutive days I did that, and then I landed in the hospital. I'm not telling you I to land in the hospital. Health is wealth. Right. But you have to work. If you're constantly spoon-fed by your parents, how are you going to, prepare them for the road, not the road for them. Right. True. You know, ईशा, आपने बहुत अपनी फिल्म के बारे में बात की जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, which is एक विवाह ऐसा भी। You know, I think मेरे हिसाब से, and please correct me if I'm wrong, जो हम लोग बात करते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स रोल करना, जो एक स्टीरियोटाइप से ब्रेक होके करना, आफ्टर गिविंग अस सच न्यूमरस सॉन्ग्स एंड सच ब्लॉकबस्टर हिट्स जिन पे हम आएंगे, यू डिड अ रोल लाइक दैट, जहाँ पे यू नो जो हमेशा कहते हैं कि ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते, जिन्होंने बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स किए होंगे, from a hot looking girl to a girl next door, and you pulled that off well. जब आपको उस टाइम पे वो रोल ऑफर किया था, I feel that was very progressive. And how did you take it as an actor? See, before I did those hot numbers, or the sexy songs, I had played the girl next door in my South films and won awards for that too. Right. So I got a Filmfare award मेरे first film के लिए, which was कादल का विदय, where it was the girl next door. ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं था, but thanks to Rajeshri Films and the director and my producer, उन्होंने मुझे उस रोल में लिया क्योंकि उनकी वो विजन थी। इफ यू हैव आपका नेचर, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी विजन ही प्रोग्रेसिव है, यू ऑटोमेटिकली नो कौन किस काइंड का के रोल में फिट हो सकता है और कैसे लग सकता है। बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज दैट टाइपकास्ट मेंटालिटी। देयर आर सर्टेन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हु हैव फुल कॉन्फिडेंस हाउ दे कैन मोल्ड द एक्टर, कि एक गाना किया तो बस ये सिर्फ हॉट गाने कर सकती है, या
ऐसे ही रोल कर सकती है. हाँ, there are people who know कि ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है. She is versatile and I really thank them for the opportunity that they gave me in that film. क्योंकि उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ यार ईशा ये भी कर सकती है. हिंदी फिल्म में Hindi specifically. films. हाँ. In our Bollywood. In our Bollywood. Well, the South knew it. South had already accepted me. Yeah.